बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। Hello and welcome. You're watching Business Today. I'm Sakshi Batra. Now, while I enjoy capitalizing on the opportunity to celebrate women every day of the year, but on International Women's Day, it definitely makes double the celebration. And to mark this International Women's Day, I'm very pleased to welcome Preeti Rathi Gupta, founder Lakshmi, which is India's first financial platform for women, on our show to discuss where women really stand on money matters. Thank you so much, Preeti, for taking the time out, and happy Women's Day to you. Happy Women's Day to you too, Sakshi, and thank you for having me here, and happy Women's Day to all our viewers, women as well as men. Absolutely. Happy Women's Day to everybody. So before we kickstart with our key insights of the study that you've done, the very, very interesting study on where women stand with Money Matters on Women and Money Power 2022, I want to first know from you. We have come out of this very, very unprecedented times of 2 years of the pandemic, which has in many studies highlighted how disproportionately it has impacted women. I want to understand from you, has the pandemic changed the way women deal with money matters? Are they now proactively seeking to educate themselves on money matters, perhaps taking more charge and control of their money? What have you really found in your own sense? So absolutely, Sakshi. And I think this is one of the major drivers for us to do this study. And, when we come to the study, I'll speak a little bit more on it. But what we've seen over the pandemic is that, look, women were already sort of struggling. They're far away from financial equality, right? What the pandemic did was, one, either women were the first to hit in terms of job losses or pay cuts. And I think their struggle there was very, very real, because suddenly you're earning money and then, either income has reduced or just there's no money coming in, right? So even that sense of financial independence, whatever little there is, was also, reduced to a very large level. Second, also homemakers, right? The income in the household really either coming down or becoming unreliable. I think women were forced to sort of pay attention to saving money, planning for, financial security going ahead, more family centric, right? And we'll come to a lot around women themselves, but family security, family financial security. And I think beyond all of that, just the uncertainty of life, right? What happens when and we've seen so many cases, because in Lakshmi, we had started a helpline for women who'd lost their spouses, and we helped them get all their financial documents in one place, understand how to, put your finances together. So I think that the pandemic, I think overall has made women more conscious of saying, this is an aspect that I need to plan, I need to be aware of, and I need some sort of control of. Absolutely. And congratulations to you for helping all women out there in this difficult time. And now is the time to actually look forward, look ahead, and take the learnings from the past and move forward with more confidence with related to money matters. तो कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एस्पेक्ट्स आपके स्टडी पर देखने को मिले. सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस स्टडी में विमेन के सेविंग हैबिट्स को लेकर क्या कुछ हाइलाइट्स आपको पता चले, कहां पर विमेन सेव कर रहे हैं, और जो भी उनके पास सेविंग्स आ रही हैं मंथली बेसिस पर, वो कहां जा रही हैं, ये अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए और हमारे सभी व्यूअर्स के साथ भी. बिल्कुल साक्षी, उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये स्टडी क्यों हमने जी. जब हमने लक्ष्मी का प्लेटफॉर्म शुरू किया ताकि विमेन आके अपने पैसे इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक द मेल वर्ल्ड आउटसाइड सारा ये पूछता था कि आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए फॉर विमेन. और इसीलिए, और जब हम खुद कुछ आंकड़े ढूंढना चाहते थे कि हम समझें विमेन पर्सोना के हिसाब से, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, मैरिड विद चिल्ड्रन हैं, या विडोड या डिवोर्स्ड हैं, आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या टियर 1 टियर 2 सिटी में रहती हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप पैसे के साथ कैसे डील करिए. तो हमारे पास ये आंकड़े कहीं नहीं थे. हम बहुत रिसर्च करते, पर बड़ी मुश्किल से ये नंबर्स नहीं मिलते. तो हमने पहले तो ये सोचा कि क्यों ना हम ही ये रिसर्च करें, हम ही ये स्टडी करें, ताकि सिर्फ हमारे लिए नहीं बट पूरे आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी ये नंबर्स थोड़े से स्टैंड आउट हो कि विमेन आर रियली गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड.
एब्सोल्युटली। वो इस पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा नहीं बन रही है। तो ये तो हुआ ये रीजन क्यों करने का। अब जब हमने जब ये स्टडी की तो बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने आए। जी जैसे कि हम एक गोल्डन रूल ऑफ बजटिंग होता है, जिसमें हम कहते हैं कि आपको कम से कम 20% आपकी जो कमाई या आपकी जो इनकम है जी उसको आपको सेव करना चाहिए। जी जब हमने ये पूछा और ये स्टडी हमने मतलब 4,000 विमेन के साथ अक्रॉस सिटीज की 25 सिटीज में, जो कि मेट्रो टियर 1 टियर 2 थे, तो हमने ये पाया कि 78% विमेन देवर सेविंग लेस देन 20%। ओके 56% विमेन 10% से भी कम अपनी जो इनकम है उसको सेव कर रही थी। तो ओके समझ में ये आया कि सेविंग विमेन बहुत कम कर रही हैं, जितना कि होना चाहिए, एक परफेक्ट जो आइडियल रेशियो होना चाहिए उससे कहीं कम कर रही हैं सेव। और सेकंड इंटरेस्टिंग चीज हमने ये देखी कि नॉन मेट्रो सिटीज में विमेन ज्यादा सेव कर रही हैं मेट्रो सिटीज से। ओके और उसका कारण हो सकता है कि आप कि मेट्रोज में आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो। मेरा ये मानना है कि इवन यूजिंग डिजिटल करेंसी, राइट, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपकी स्पेंडिंग उसमें ज्यादा हो जाती है या सेविंग कम हो जाती है। पर ये काफी इंटरेस्टिंगली सामने आया। वर्किंग वुमेन ज्यादा पैसे सेव करती है अपनी इनकम से। और होम मेकर्स, ये बात काफी समझ में आ सकती है क्योंकि होम मेकर्स का खुद का कोई उनकी अर्निंग नहीं है, तो जो उनका हाउस होल्ड इनकम या जो भी उनको मंथली खर्चा जो मिलता है उसमें उनको से करना ही पड़ता है खर्चा, लाइक दैट्स गिवन टू देम फॉर स्पेंडिंग, सो इट्स तो अंडरस्टैंडेबल। उसमें काफी कम होता है। जी तो आई थिंक सेविंग के मामले में हमने ये देखा, जबकि कहा जाता है कि वी एज वुमेन वांट टू सेव। हमने पिछले साल साक्षी एक सर्वे किया था बच्चों को लेके कि आपको बचत कौन सिखाता है, और 98% बच्चों ने कहा मम्मी सिखाती है कि हमें पैसे कैसे बचाने चाहिए। सो एज वुमेन वी ऑलवेज टेंड टू सेव। हमारी एक एक इंट्रिंसिक हैबिट है कि हम पैसे बचा के फॉर अ रेनी डे हमेशा रखते हैं। बट आई थिंक बहुत जरूरत है इसमें भी थोड़ा अवेयरनेस लाने की कि आपको जितना एक परफेक्ट रेशियो है कम से कम उसकी तरफ ध्यान देके और उतना बचाना ही चाहिए। अंडरस्टूड दैट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आपने समझाए हैं विमेन की सेविंग को रिलेटेड। तो अब ये जब हमें समझ में आ चुका है कि कई प्रतिशत विमेन जो हैं 20% जितना आइडियल सेविंग होना चाहिए उससे कम सेव कर रही हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि वो स्पेंड कहाँ कर रहे हैं और ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है, वेयर आर दे स्पेंडिंग दिस। तो हेल्प अस अंडरस्टैंड, अगर ये सब एस्पेक्ट्स भी आपके स्टडी में आए हैं सामने तो बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने ये भी पूछा विमेन से कि आप कहाँ स्पेंड कर रही हैं, पर हमने ये भी पूछा कि आप घर के जितने स्पेंड्स है, हाउस होल्ड में जितने स्पेंड्स हैं, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है। राइट तो सबसे पहले तो विमेन का इन्वॉल्वमेंट जो बेसिक नेसेसिटीज है, ग्रोसरीज है, चाइल्ड एजुकेशन है, और कुछ जैसे सेल्फ कंजम्पशन जो भी हो, वहां बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट है। पर जो फाइनेंशियल जहां पैसा जा रहा है, सपोज घर खरीदना है या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, वहां विमेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, राइट। तो एंड दिस इज व्हाई लक्ष्मी एग्जिस्ट, राइट, ताकि विमेन इन डिसीजंस में भी इन्वॉल्व हो और थोड़ा समझे। तो अराउंड उनके पूरे जो सेविंग्स जो स्पेंडिंग्स है उसमें सबसे बड़ा ब्रैकेट है ग्रोसरीज। घर का सामान, बेसिक जो भी हम यूटिलाइज करते हैं वो सबसे बड़ा है। उसके बाद बड़ा आइटम है चाइल्ड्स एजुकेशन। और चाइल्ड एजुकेशन एक्चुअली इवन सेविंग गोल के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से विमेन के लिए सबसे बड़ा बकेट है। हम हमारे चाइल्ड के लिए एजुकेशन के लिए सेव करें और उसका स्पेंड करें और इन्वेस्टमेंट गोल भी बनाए, तो दैट इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट थॉट ऑन अ वुमेन्स माइंड। और फिर अराउंड 14% है जो पर्सनल कंजम्पशन है, जैसे कि खुद के क्लोथ्स, फूड, फैमिली के क्लोथ्स, पर्सनल कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। तो these are the large buckets where women are spending their money. ओके अब आते हैं निवेश की तरफ। जब हमने सेविंग्स की बात कर ली और स्पेंडिंग की भी बात कर ली, अब जाहिर सी बात है कि हम
आपका प्लेटफॉर्म भी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा विमेन इन्वेस्टिंग की तरफ हो, तो ये भी समझना जरूरी है कि कितने प्रतिशत विमेन जो है निवेश की तरफ अब आगे कदम बढ़ा चुकी हैं, और क्या इस पैंडेमिक की वजह से more and more women are they tilting towards investment or not? So what have you found in your study, ma'am? So this is very interesting, and this is my favorite part, because Okay. this is what we are educating, making women aware on, and making sure they start investing their money on the platform as well. So we found very interesting numbers. About 33% women don't invest at all. Oh. यानी कि वो अपने पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करती हैं. About 22% women बोलती हैं कि हाँ हम इन्वेस्ट करते पर पता नहीं कहाँ करते. Okay. So what we are saying is about 55% women या तो इन्वेस्ट नहीं कर रही है, उन्हें पता That's नहीं. very shocking. Yeah. Yeah, 55% women. Hmm. 38% women जो इन्वेस्ट करती हैं वो टिपिकली अपने फैमिली मेंबर से पूछ के, फैमिली या फ्रेंड से, कि आप बता दो, आप जहां बताओगे हम वहां इन्वेस्ट कर देंगे, राइट? Correct. Correct. Only 7% women एक सेल्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेती हैं, जो वो खुद समझती हैं कि मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उस हिसाब से मुझे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए. वो स्टडी करके, थोड़ी सी लर्निंग करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन सिर्फ 7% women लेती हैं. Those are very, very interesting aspects. Yes. It is very interesting. और इसमें देखिए, मेरा मानना है कि आप फैमिली मेंबर से एडवाइस लें, उसमें कोई बुराई नहीं, आपके फ्रेंड से एडवाइस लें, लेकिन अगर आप उनके कहे बिना समझे, इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन, देन दैट्स अ क्वेश्चन. ये जरूर आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि मैं मेरे फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से मैं पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ कि नहीं. और इन्वेस्ट जो कर रही है वुमेन, उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग, जब हम इन्वेस्ट कहते हैं तो उसमें हम सब कुछ ऐड करते हैं. हम उसमें सेविंग्स अकाउंट, एफडी, सब कुछ ऐड करते हैं, राइट? जी जी. तो उसमें अगर आप देखें तो 60% women तो अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रख रही है, ओके, बैंक अकाउंट में, राइट? तो ओके. इन्फ्लेशन को बीट करने का जो आइडिया है कि हमारे पैसे बढ़े, ग्रो हो, कम से कम इन्फ्लेशन तो बीट करें, या इन्फ्लेशन के बराबर बढ़े, और उससे ज्यादा फिर आगे हमारी पैसों की बढ़त हो, वो विमेन काफी कम है. मतलब बहुत कम विमेन है जो ये सोचती है कि हमको फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से, उसमें पैसे डालने चाहिए. तो उसमें हमने ये देखा है कि जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे कि आप गोल्ड में करीब 42% women said we prefer gold, right? And we put our not surprising at all. Not surprising at all. 35% women said we put money in fixed deposits. And this was asking women कि आप कहाँ पैसे डालती हैं. उसमें fixed deposit, gold took preference, right? But कुछ interesting चीजें ये भी निकली कि women chose, about 17% women said कि we put money in chit funds. लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड पूछे तो only 14% women said कि हाँ, हम म्यूचुअल फंड में भी डालते. Right. तो ये चीजें काफी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जहां वो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज चूज कर रही हैं कि वो कैसे इन एवेन्यूज को चूज कर रही है, राइट? कि आप क्यों चिट फंड्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं एक म्यूचुअल फंड के बजाय, जबकि आपका बेसिक नेचर है कि हम सेफ्टी की तरफ रहे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थॉट इज कि हाउ कैन आई कीप माय मनी सेफ. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट. और फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड में ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो यंग जनरेशन है 21 to 25, उनका भी फ्यूचर इंटेंट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड गोल्ड इज वेरी हाई. राइट. So which means that the whole financialization of assets जो हम बोलते हैं, वो बहुत कम हो रहा है. और अगर हमने ये अवेयरनेस, अगर हमने ये जागरूकता नहीं फैलाई, तो ये नंबर्स चेंज होने बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि फ्यूचर इंटेंट भी वही है. एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा. एक मैं और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी प्रीति. अगर आप इस रिसर्च को और आगे बढ़ाएं तो आप एक और एस्पेक्ट जरूर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने काफी अपने कॉन्वर्सेशंस में कई लोगों से पाया पिछले 1 से 2 साल में. पैंडेमिक के तौर से पहले भी, तब तो काफी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो इन सभी चीजों पे रोक आ गई, लेकिन ये जो घर घर में किटी होती है, कमिटीज होती हैं, वो
आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होता होगा कुछ विमेन के लिए टू जनरेट दोस इमरजेंसी फंड्स फॉर देयर इमरजेंसी नीड्स, और जो कि बिल्कुल भी किसी भी एंगल से ना आपको कोई फाइनेंशियल रिटर्न्स देता है, ना फाइनेंशियलाइजिंग ऑफ सेविंग्स है। लेकिन कई कॉन्वर्सेशंस में ये सामने आया है कि ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रूट है, चाहे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी अगर आप देखें तो आई एम श्योर दिस विल आल्सो गिव यू अ बेटर इनसाइट, मे बी इफ यू कैन टेक दिस रिसर्च फॉरवर्ड and understand, because I think more and more women around me, they have been used to of doing this kitty format for a long time, and surprisingly most men don't understand that kitty is not about just parties, it is actually about making money. So which they haven't been able to understand, but I'm sure this will bring out some interesting aspects. आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कही कि कहाँ गोल्ड और एफडीज में अभी तक इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादातर विमेन इन्वेस्टर्स इंक्लाइंड हो रहे हैं, लेकिन मैं जैसे आपने अभी बात कही थी बहुत इंपॉर्टेंट कि चाइल्ड फाइनेंशियल गोल्स, चाइल्ड रिलेटेड फाइनेंशियल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या की ड्राइवर्स हैं जो कि विमेन को इन्वेस्टमेंट की तरफ लीड करते हुए अभी नजर आ रहे हैं, और उसमें क्या कुछ और चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं आपको? तो साक्षी, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आए जब हमने पूछा कि आपके की ड्राइवर्स, आप किस लिए इन्वेस्ट करेंगी, आप किस लिए पैसे बचाएंगी, तो 41% women said child's education. Right, about I think 26% said family security. जो हम, we know this. I think one of the reasons for women to invest money is the drive behind it should be when women invest their money, they invest it back into the family. It is for the family to get better, and which means the society to get better, communities to get better, right? Yes. So very as our hypothesis went, I think it was more towards child's education, family security. पर 2-3 चीजें काफी disturbing है. तो only 1% women said that we are thinking about our retirement. Only 1%. यानी जब खुद की बात आई तो they are putting themselves way beyond, right? कि हमारा खुद का रिटायरमेंट है या मेरे खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम. अबाउट 4% women said कि हाँ वो भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, राइट? एंड अबाउट 2% said कि अच्छा मेरा एक ड्रीम है अपना बिजनेस शुरू करूँ, तो मैं उसके लिए पैसे आई एम इन्वेस्टिंग और ग्रोइंग और सेविंग माय मनी फॉर दैट. ओके. But these numbers are very disturbing when you come to look at 1% for retirement or 4% for your own financial security. I think, and this is across the board, right? यानी आप working और non-working women में कोई फर्क नहीं था इसमें, which is, I think, something that we need to really highlight, and it is shocking. Right? हम हमेशा लक्ष्मी में ये बोलते हैं कि average age of woman is 4 to 5 years more than that of a man. यानी चांसेस हैं कि आपकी रिटायरमेंट और लंबी हो, तो आपको तो इन्वेस्ट करना और आपको वो पैसे ग्रो करना और अपने लिए इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर यू, बिकॉज़ देयर विल बी सर्टेन टाइम वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल दैट यू विल बी ऑन योर ओन, सो यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ टू. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. सो व्हाट आर द की हर्डल्स दैट यू हैव फाउंड टू बी stopping women for taking this step towards their own investments, thinking about their own retirement and thinking about their own investment goals as well? तो साक्षी, जब हमने ये जब स्टडी की तो हमने ये जरूर कहा, जो हमारे पार्टनर हैं एक्सिस माई इंडिया, जिनके साथ हमने ये स्टडी की है, क्योंकि वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और उनका बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिससे सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स भी हम कवर कर सकते हैं, राइट? तो हमने ये कहा कि आप ये भी पूछिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन का खुद के पैसों पे, सेविंग्स पे या अर्निंग्स पे कितना कंट्रोल है ऑन डिसीजन मेकिंग. यस, कई बार हम ये भी नहीं समझते हैं कि पैसे हैं, बचत है, पर can I make that decision on my own, right? Yes. And a lot of feedback that we got again confirmed our hypothesis that women don't really have control on decision making over their own money, right? Beyond that, I think women said कि हमारे पास, for example, we are low on funds. हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें, या अवेयरनेस नहीं है हमें, right? Now, I think low on investment funds is also lack of awareness, क्योंकि आज आप फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहे तो आप 100 रुपए हर महीने कर सकते हैं, या 500 रुपीज एट वन गो कर सकती है, राइट? सो यू डोंट, विमेन के माइंड में ये है कि मुझे बहुत पैसे, आई शुड हैव सेव्ड, कि काफी एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, कॉर्पस होना चाहिए, ताकि मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूं, राइट? सो दैट ऑल्सो वी पुट इट
in the bucket of, lack of awareness. And then about 10% women said, look, I don't want to lose my money. So the fear of losing money. So ye sare, whether it is lack of awareness, whether it is low on initial funds, whether it is fear of losing money, I think I would put it all in really lack of financial literacy and awareness. Yes. And I think that is one of the largest reasons also that women are not taking control over that decision making. Very true. Very true. And we hope with platforms such as yours, more and more people get connected with you, the way that you are functioning in more and more cities, you're expanding and you're reaching out to many more people with such studies, with such road shows and everything, to make people aware, to make women aware about how there is a dire need for them to now take a step. So we hope that this International Women's Day, that really happens. Last few questions that I have for you. Yeah. Actually, one more thing in this. So we realized when we asked women, 92% women said कि हम कोई financial news या website या हम कुछ नहीं access करते, right? But about 78% women said कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सिर्फ women के लिए है, तो हम जरूर उसको access करना चाहेंगे. Like Lakshmi. Yeah, absolutely like Lakshmi. And I think that for us was a big validation of why, Lakshmi exists and why we want women to come and invest on this platform, which is, by women for women. Absolutely. And perhaps, women can understand each other's, way of life and the, commitments that they have to go through, the kind of lifestyle that they go through, all of these things much better than the other gender understanding us. So, why not? By women for women is the way to go. And yet again, congratulations to you for thinking this much before and, bringing us this platform for all the women out there to explore how they can go forward with the ease of communication with the other women on your platform as well. So help me understand, Preeti, if I have to understand from you, for all the women, viewers of ours who are watching you on this platform, what are the guiding principles for you when it comes to investment? And if there is any gender element to it, like you said that, they are more comfortable with women platforms. So. Absolutely. So I think, first of all, for me, it is important. And people say that women are risk averse. I say this all the time. Women are risk aware. That means that we will put our money into instruments or places that we understand. Right. So sabse pehle to I encourage women to go and learn, be part of communities. For example, on the Lakshmi platform, or we have a Facebook group also being Lakshmi. First come and ask questions. हमारे लिए एज वुमेन ये भी कहीं एक सेफ प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम हमारे क्वेश्चंस पूछ सके. सो आस्क, लर्न फ्रॉम अदर वुमेन, मेक मनी मैनेजमेंट समथिंग व्हिच इज अ लाइफ स्किल दैट यू आर बिल्डिंग, राइट? यूज लर्निंग टूल्स, बहुत सारे लर्निंग टूल्स अवेलेबल हैं, तो उनको आप यूज करें. मनी मैनेजमेंट इज रियली नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंस. इट इज अ बिहेवियरल साइंस. आपको मैथ्स में अव्वल होना या मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है. तो अगर आपको पैसे कैसे संभालने, यू हैव टू कनेक्ट विथ योर बिहेवियर, द वे योर रिलेशनशिप विथ मनी इज, राइट? तो एक बिहेवियरल साइंस है. तो आप थोड़ा लर्निंग करें कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं. बहुत सिंपल है इन्वेस्टमेंट करना. आपके लिए 2 चीज जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली जिन लोगों ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, जिन वुमेन ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया. We as women, हमारे लिए the way we invest is towards goals. आप देखेंगे अगर आप पैसे अलग रखती हैं तो भी आप ये सोचेंगे, अच्छा मैं इस चीज के लिए रख रही हूँ. In our head we know why we are keeping that, right? It is child's education. It may be I want to buy something for myself. I want to do something for my child or buy something for my family, right? गोल रहता है. तो आप सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल गोल्स लिख लें कि ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं, और उन फाइनेंशियल गोल्स में टाइम पीरियड लगा दें आप कि आपको ये कितने समय में ये गोल अचीव करना है. क्या आपको ये 1 साल के अंदर करना है, जिसको हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कहते हैं? क्या आपको 1 से 3 साल में करना है, जिसको हम फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट टर्म बोलते हैं? या आपको 3 साल से आगे का है? सपोज आपको घर खरीदना, ये आपका फाइनेंशियल गोल है, तो वो आपको 5 साल बाद खरीदना है, तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल हुआ.
इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आपको पैसे डालने बहुत इजीली चूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से सही रहते हैं। जैसे कि आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटीज में पैसे डालें तो वो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डालें, ताकि आप 3 साल से ज्यादा उसको रख सके। आप शॉर्ट टर्म में डालना चाहें तो आप डेट फंड्स में डालें। गोल्ड जो जिसमें हम एज वुमेन बहुत कई बार आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज कि गोल्ड में पैसे डालें, लेकिन हम ये सोच के डालते हैं कि अच्छा ये तो लिक्विड है, कभी भी हम इसको वी कैन बाय एंड सेल। लिक्विड जरूर है पर गोल्ड भी एक लॉन्ग टर्म एसेट है, क्योंकि गोल्ड में भी अब बहुत वोलेटिलिटी होती है। जैसे हम देख रहे हैं इकोनॉमीज में हुई, वॉर हो गया, कुछ भी होता है तो गोल्ड की प्राइसेस काफी वोलेटाइल होती है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म है। तो बस आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, और फिर मुझे किस इंस्ट्रूमेंट में डालना है। और तीसरी चीज में बहुत जरूरी है कि आपके जितने भी पैसे हो सब एक जगह ना डालें। आई थिंक ये वी एज वुमेन नो दैट। मुझे याद है मेरी दादी जो है पैसे बरनियों में रखती थी अलग अलग। बिल्कुल हमें अप्लाई करना है कि हमें वो पैसे वी हैव टू पुट इट अक्रॉस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको कि हम एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये 3 चीज अगर आपने कर ली तो यू आर सेट इन मेकिंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग। और चौथी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप इंश्योरेंस जरूर लें। हमारी स्टडी में ये भी समझ में आया कि लेस देन 60% women have health insurance. वुमेन आपके लिए इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी प्लानिंग सही चले, ताकि आपकी प्लानिंग में कोई डेंट ना हो कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। ये 4 चीजें आपने कर ली, यू आर सेट। Even now the time is right. If you are here, if you are listening to this conversation, make it a point that if there is one gift that you should give yourself on this Women's Day, it is to take charge of your finances and your investments, and that in its true self will be self-care that we talk about very often on Women's Day. So thank you so much and wish you a very happy Women's Day yet again, Preeti, and to all our viewers as well who joined us. I hope this conversation has helped you in your own decision making when it comes to money matters. Do write into us on the comments below and share with us how you found this conversation, whether it really helped you, and whether you would want Preeti to come often and talk about more things when it comes to help you out when it comes to your finances as well. Thank you so much for being with us on this show. Thank you, Sakshi. And just on our ending note, let's include men in this conversation. Yes. I think this is the gift that men should also give to all the women around them, because then we have an equal and healthy world. Absolutely. So thank you, Sakshi. Thank you for having me on this show. It's always a pleasure, and look forward to more. Thank you so much. Thank you everybody for watching us and for being on this show. Thank you so much, and do stay tuned on to Business Today. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।